بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی میڈم شبانہ آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں جی. میڈم شبانہ جی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا میرا نام شبانہ ہے، شبانہ بیگم، اور میں ہیپیٹائٹس سی ٹرسٹ کی طرف سے کام کر رہی ہوں، ان کے لیے کام کر رہی ہوں جی ٹھیک. پچھلے 16 سال سے. اور کام ہمارا یہی ہے کہ اپنی کمیونٹیز میں آ کے، یا جیسے ایزڈا میں کاپاک میں آج ہم کھڑے ہیں ٹیسٹنگ وین کے ساتھ، نوٹنگم میں ہے تو لنکن شیر ہاسپٹل کے ساتھ مل کے، NHS کے ساتھ مل کے، اور ہماری ٹیمز ہیپ سی ٹرسٹ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. تو ہم لوگ کیا ہے کہ پوری کنٹری کا ہم لوگ دورہ کرتے ہیں، اپنی کمیونٹیز میں جاتے ہیں، جی جی معلومات بڑھاتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی یعنی کہ اپنی زبان میں اس کو کالا جرکان بھی جی بولتے جی. ہیں، انڈیا میں کالا پیلا بھی بولتے ہیں اس کو. تو چونکہ اس کی کوئی واضح علامتیں نہیں ہیں، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور خاموش وائرس ہے یہ، جو کہ خاموشی سے آپ کے جگر کے اوپر حملہ کرتا ہے، خون میں زندہ رہتا ہے، حملہ جگر پہ کرتا ہے اور آپ کو لیور کینسر دے سکتا ہے. سو ہم لوگ اویئرنیس آپ اویئرنیس دے رہے ہیں؟ جی ہم لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ کیا بیماری ہے اور کس طرح سے آپ کو لگ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بہت انیسنٹلی معصوم طریقے سے آپ کو لگ سکتی ہے. میری کہانی یہ بیسکلی کہ یہاں کی پیدائش ہے، یہاں پہ پلی بڑھی ہوں انگلینڈ میں. تو پاکستان گئی تھی میں 13 سال کی عمر میں، وہاں پہ ڈاکٹر نے، کمپاؤنڈر نے گندا انجیکشن لگا دیا. 20 سال بعد پتہ چلا ہے کہ مجھے لیور کینسر کی اسٹیج 2 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت میرا 20 سال پہلے میرا علاج ہو گیا، تو الحمدللہ آج کھڑی ہوں. الحمدللہ. ان دنوں، پرانے دنوں میں انجیکشن پیٹ میں لگتے تھے جس کا نام تھا انٹرفیرون. آج کل جو ہے 1 یا 2 گولیاں لے، 8 سے لے کے 12 ہفتے تک علاج کروائیں آپ، ٹھیک ہے؟ جیسے پیراسیٹامول کی کئی دفعہ ہم لوگ گولی لے لیتے ہیں، ٹیبلٹ لے لیتے ہیں، جی جی. وہ آپ لیں 3 مہینے تک، 12 ہفتے تک، اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے وائرس. بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انجیکشنز جو پرانے زمانے میں لگتے تھے، پرانا زمانہ کہہ رہی ہوں 20 سال پہلے جو لگتے تھے، اس میں کیا ہے کہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے تھے. اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر میں، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو یا کسی اور کو پتہ نہیں چلے گا آپ کو یہ علاج ہوا ہوا. اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو پھر وہ کہاں کانٹیکٹ کرے؟ وہ ہیلپ لائن کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. ہیپیٹائٹس سی ٹرسٹ، ہیپاٹائٹس سی ٹرسٹ. ہم لوگ لنڈن میں بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے. ہیلپ لائن میں آپ کو انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے، وہاں پر بھی آپ کو نمبر مل جائے گا. ٹھیک ہے. ہیپیٹائٹس سی ٹرسٹ آپ لکھیں گے، جی اس میں بھی آ جائے گا. دوسری بات یہ، گوگل کے اندر میرا نام ڈالیں گے نا، جی شبانہ بیگم، اچھا، پھر ہیپیٹائٹس سی، جتنے بھی میرے انٹرویوز ہیں اپنی زبان میں جو ہے وہ آ جائیں گے، انگلش میں بھی، اردو میں، انگلش میں، اور اردو میں بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ ہم لوگ، ہاں جی، یہ ہم نے کتاب جو ہے انگلش میں بھی ہے یہ، اور اردو میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا نمبر ہے ہیپیٹائٹس سی ٹرسٹ کا. جی. QR کوڈ بھی ہے. QR کوڈ بھی ہے، اور یہ QR کوڈ کے اوپر تو میرا ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ ہیپیٹائٹس سی کے متعلق بات کرتی ہوں. اور یہ QR کوڈ NHS QR کوڈ ہے. اس کو اگر اسکین کر کے آپ اپنا ٹیسٹ منگوا سکتے ہیں گھر پہ، جیسے ہم لوگ گھر پہ منگواتے تھے نا، کووڈ ٹیسٹ، کرونا کے ٹیسٹ کر کے ہم لوگ بھیج دیتے تھے. اسی طرح سے اس کے اوپر آپ اسکین کریں گے، NHS کا فارم آئے گا، اس کو آپ بھریں گے، بھیج دیں گے، تو وہ آٹومیٹکلی ٹیسٹ آپ کے پوسٹ میں آ جائے گا. ٹیسٹ کریں گے آپ. ٹیسٹ بوتل جو ہے نا اتنی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 1 انچ کی بوتل ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی. اس کو آپ نے خون کے ساتھ بھر کے آپ نے واپس پوسٹ کر دینا ہے، اور کچھ ہفتوں میں یا دنوں میں آپ کا جو ہے نا رزلٹ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آج ہم یہاں پہ ایک سوال ہم کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس وائرس ہے، ہم گولیاں اس کے بغیر کھا سکتے ہیں؟ گولیاں نہیں، ضرور، بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کا جو ہے نا انویسٹیگیشن کرائیں. وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بولا نا واضح علامتیں نہیں ہیں اس کی، وہ انویسٹیگیٹو ورک اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں، یا ہم سے کروائیں، یا اپنے GP کے پاس جائیں، اس سے بولے کہ بھئی پاکستان کی پیدائش ہے میری، وہاں پہ، یا انڈیا کی پیدائش ہے، یا بنگلہ دیش کی ہے، لے نا، انڈیا پاکستان کی پیدائش ہے، تو آپ جو ہے پلے بڑے وہاں پہ ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہیں، حجام کے پاس گئے ہیں. نائی جو ہے وہ اس طرح استعمال کرتا ہے سب لوگوں کے اوپر. فار ایگزامپل ہماری فیملی میں کسی کو ہیپاٹائٹس، ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، جی ہاں، تو اس کا بھی ٹیسٹ لازمی ہے؟ آپ کی وائف کو تو نہیں ہے نا؟ ان کا ٹیسٹ کروائیں آپ. جی.
उनका टेस्ट करवाएं वाइफ का, जी So नहीं। बच्चों का भी करवाएं। बच्चों का जो है ना टेस्ट जो है वो हम लोग नहीं करते कम्युनिटी में, वो आप 16 साल से ऊपर जो हैं, या 16 साल से ऊपर होंगे तो हम उनका कम्युनिटी में टेस्ट कर सकते हैं, वरना बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाए, पूरी फैमिली को टेस्ट कराएं। आजकल जीपी जो है अगर आप उनको बोलेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे जी, जी। तो आपका वो टेस्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है, इसलिए कि उनको भी पता ढंढोरा हमने इतना पीटा है वो अप मेरे एंड डाउन द कंट्री कि आप प्लीज़, बहुत सिंपल टेस्ट है जैसे आप लोगों ने आज करवाया है, या तो एक कतरे का टेस्ट होता है तो या फिर 3-4 कतरे लेने पड़ते हैं। जी, जी। उसके ऊपर इसमें हाँ सब जी, कुछ आ जाएगा। या इसमें जो आपने आज टेस्ट करवाया उसमें हेपेटाइटिस बी का आएगा, सी का और HIV का भी आएगा। HIV का। और ये प्लीज़ याद रखें कि HIV जो है वो ज़रूरी नहीं आपने गलत काम किया, ये ड्रग्स लिए हाँ तो वो लगाए। सिरिंज से भी हो सकता है, ये गंदी सिरिंज से भी हो सकता है, और वो ठीक जो है? खून रेजर वगैरह से भी हो सकता है। HIV नहीं होता उससे, हेपेटाइटिस B and C हो सकता है। अच्छा, अच्छा। अब ये है कि अगर आपको खून लगा है जी जी या आपने अतिया दिया है खून का पाकिस्तान में, या यहाँ पे आपने दिया है 1991 से पहले, जी, जी। या आपको खून लगा है, ज़्यादातर औरतों को लगता है ज़चगी में, जी, 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 ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे लगा है तो आप प्लीज़ अपना हेपेटाइटिस सी ट्रस्ट से भी रब्ता करें, मगर ठीक। सबसे पहले ये कि डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है हेपेटाइटिस बी या सी के लिए तो आप प्लीज़ हेपेटाइटिस सी ट्रस्ट से भी रब्ता करें, औरतों को भी करवाना चाहिए ना। जी जी सब बहुत ज़रूरी है। हाँ। सही। मगर पता क्या, औरतें हमारी वैसे भी डॉक्टर के पास ज़्यादा जाती, मर्द हजरात कम जाते हैं, नहीं मैं तो जाता हूँ ठीक है? तकरीबन। नहीं आप जाते होंगे मगर काफ़ी सारे जी, जी। लोग हैं जो नहीं जाते हैं, तो ठीक है, मेरा सवाल है जी ये अर्ज करें हुक्म करें। बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में जी, ज़्यादातर ये गंदा पानी पीने से, हाँ ओके, क्योंकि घरों में आजकल ये गटर लाइन का पानी और दूसरा ठीक है। पानी इस्तेमाल इकट्ठा मैं इसका ना एक्सप्लेन करती हूँ। एक मिनट हाँ मैं अच्छा आप आके एक्सप्लेन करें। सो बेसिकली हेपेटाइटिस, ये जो भाईजान ने अभी अर्ज किया ना, गंदे पानी से जो लगता है ना उसको हम लोग पीलिया या जरकान बोल देते हैं, ठीक है। वो जो है गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से वो लगता है, वो हेपेटाइटिस ही है एक किस्म का। हेपेटाइटिस वर्ड जो है, लफ्ज़ जो है, उसका मतलब ये है कि जिगर के ऊपर वर्म आना, बिल्कुल ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की हेपेटाइटिस है, मुख्तलिफ तरीक़ों से लगती है हेपेटाइटिस। सॉरी मेरी उर्दू भी ना पंजाबी नहीं अच्छी उर्दू बहुत आपकी। अच्छा बोल रहे हैं। तो जो है ना हेपेटाइटिस ए जो है वो गंदा खाना खाने से और गंदा पानी पीने से लगता है, उसका इलाज भी है, ठीक है, मगर उसका सबसे अच्छी बात उसकी वैक्सीनेशन है, बचाव का इंजेक्शन आपको लग सकता है। लेकिन अगर 1 लाख आप रुपए का है यहाँ पे फ्री में लगते हैं। यहाँ पे फ्री मैं है। पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की बात है ना। अब हेपेटाइटिस बी जो है वो गंदे खून से और जो जिस्मानी तल्लुकात होते हैं मियां बीवी को आपस में भी लग सकता है, इसलिए कि पानी में जिंदा रहता है, जिस्मानी पानी होता है ना उसमें जिंदा, आपके थूक में भी हेपेटाइटिस बी के वायरस पाया जाता है, माँ से बच्चे तक भी लग सकता है वो, ठीक है, हेपेटाइटिस ठीक हो बी। गया। उसको हम लोग जो है ना अगेन पीलिया बोल देते हैं, वो इसलिए कि आपकी आंखें जर्द हो सकती हैं, आपकी स्किन की कलर जर्द हो सकती है, ए में आपके मैदे में दर्द होता है, बी में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। मगर ये बात ज़रूरी है याद रखना कि हेपेटाइटिस ए का और बी का बचाव का इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन है। जब हम लोग हज उम्र पे जाते हैं या हम लोग बैरून मुल्क जाते हैं, मेनिंजाइटिस के साथ साथ ये भी हम लोग ज़रूर लगवाते हैं, ठीक है, मगर हेपेटाइटिस सी का बचाव का इंजेक्शन नहीं है। हेपेटाइटिस सी के लिए किसी को कुछ नहीं पता होगा उनको है कि नहीं है, जी जी आखिरी स्टेज पे पता चलेगा। उससे पहले बेहतर ये नहीं कि आप टेस्ट करवा लें बिल्कुल। और जानकारी करवा लें, ठीक है, आपको है या नहीं है। इसलिए कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया, बहुत ही इजी इलाज है। एक टैबलेट आपने ये 2 टैबलेट्स लेनी रोज़ की 3 महीने मैक्सिमम, तो वायरस क्लियर और उसका साइड इफेक्ट भी नहीं। आज मुझे ये दोस्त अरफान ने कहा है जी, आए इधर आप टेस्ट करवाएं। मैंने कहा यार मुफ्त में कर रहे हैं तो हम उधर जो सबसे बैठे बड़ी हैं बात मुफ्त है। इरफान साहब तो काफ़ी टेस्टिंग बंदों को यहाँ लेकर पे आए हम हैं। लोग टेस्ट भी हम लोग मुफ्त में कर रहे हैं, और अगर बैरून मुल्क से आप आए हैं इलाज करवाना है आपने यहाँ पे, यानी कि विजिटर के तौर पे आए, चाहे यूरोप से आए हों, चाहे अपने किसी ममालिक से आए हों, बिल्कुल। यहाँ पे ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है, सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस के लिए और टीबी के लिए और HIV के लिए, और किसी मर्ज के लिए नहीं, यही सिर्फ खतरनाक इन मर्ज़ चीज़ों हैं के जी। लिए। इसलिए कि हम लोग इसको साइलेंट किलर बोलते हैं हेपेटाइटिस सी को। साइलेंट किलर खामोश क्या है, कातिल। कातिल। अच्छा एक और भी है, जी अर्ज करें। अगर पाकिस्तान में
हमारी फैमिली में औरतें बीमार हैं, ठीक है, उनके लिए वो जो गोली आप कह रही हैं कि गोलियां इस्तेमाल करें, इस वक्त पाकिस्तान वो मैं में आपको भी- लिखवा के नहीं। उनका डॉक्टर का टेस्ट लिखवा के भी दूं तो गोलियां दे सकती हैं? नहीं नहीं, सिर्फ यूके के लिए ये ये फैसिलिटी। सिर्फ और सिर्फ यूके, अगर वो यहाँ आती तो उनका फ्री में इलाज होगा। तो कुछ अगर पाकिस्तान में सुने, पाकिस्तान में मैं आपको जो है ना ज़ाती तौर पे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनके थ्रू मैं आपको करवा सकती हूँ, हाँ, यही चलो ठीक है, हाँ। मगर वो फ्री में नहीं होगा, उसके पैसे उसके पैसे थोड़े होंगे। बहुत ही उनको गरीब आदमी है, कैसे इतने मेक्स नो पैसे देंगे? डिफरेंस। मैं तो नहीं ना दे सकती खुद अपने पास से, नहीं, मैं आपसे गुजारिश की है तो ना कि मगर अगर वहाँ पे चैरिटीज वगैरह हैं जो कि हेल्प वगैरह कर चलो, रही हैं, मैं उनका कांटेक्ट आपको दे सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत टाइम दोबारा दिया। बना लूँ दोबारा कैमरे पे, कर सेटिंग हो जाए मेरी दोबारा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो प्लीज नाम याद आपको। रखें मेरा, मुझे भी नहीं, आपका नाम नहीं भूलने वाला, आपका नाम भूलने वाला नहीं है नहीं, मैम मेरा शबाना। मतलब ये था कि और मेरा आपने नाम भी के साथ- मोहम्मद इरफान याद रखना है। हाँ, अभी मैं अपने साथ नाम के साथ लिख रहा हूँ मोहम्मद इरफान लिस्सा। एक डाडा होता है ना बंदा, एक होता है लिस्सा, वो मैं लिस्सा बन गया हूँ पिछले रमज़ान से। अच्छा, ठीक हो गया, तो आपने जज़ाकल्लाह मुझे खैर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे भी याद रखना है। आपने ये मौका दिया, जी जी, और मैं जितने सबको लोग- भेजूंगा ये जितने लोगों को पता चलेगा आगे फिर वो इंशाल्लाह ये सदका जारी है। सदका ये जारिया। जारिया हो जाएगा इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह। जब भी आप माटी गांव में आए, जी इस हाँ। काम मोस्ट के लिए- वेलकम। वो तो इरफान भाई को मैंने बोल नहीं, दिया ना। एक दिन पहले इंशाल्लाह बताएं, इंशाल्लाह अच्छा, कल आ रहे नहीं हैं, वो मैं आपको इनका कांटेक्ट है, खाना नहीं डिनर बता- हम देंगे इधर सब। इंशाल्लाह प्रोटोकॉल में ये सबको बोल रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैमरे में। ठीक हो गया जी, थैंक यू भाईजान, thank बहुत you। शुक्रिया, इरफान भाई, बहुत thank you। शुक्रिया, मैं बहुत आपका शुक्रिया, thank you। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वहाँ पे ना यहाँ से डॉक्टर्स जा रहे हैं वहाँ पे इलाज कर रहे हैं।